हेलो टू ऑल ऑफ यू। आज अपना पंजाबी ग्रामर दा 4th लेक्चर है पंजाबी ग्रामर। ਆਪਾਂ लास्ट ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ ਚ ਪੜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਉਹ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 4 ਪਾਰਟ ਨੇ, 4 ਭਾਗ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਧੁਨੀ ਬੋਧ, ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ, ਅਰਥ ਬੋਧ, ਵਾਕ ਬੋਧ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਧੁਨੀ ਬੋਧ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ ਦਾ ਓਵਰਵਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਜੋ ਧੁਨੀ ਬੋਧ ਸੀ, ਧੁਨੀ ਬੋਧ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਧੁਨੀ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਧੁਨੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਧੁਨੀ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖੰਡੀ, ਅਖੰਡੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਖੰਡੀ ਧੁਨੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਸਵਰ ਤੇ ਵਿਅੰਜਨ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਵਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ 2 ਪਾਰਟਸ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਸ਼ਵ ਤੇ ਧੀਰਘ। ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਜੋ ਪਾਠ ਹੈ ਵਿਅੰਜਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵਿਅੰਜਨ ਇਹ ਉਹ ਖੰਡੀ ਧੁਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਂ ਰਗੜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵਿਅੰਜਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਚਾਰਨ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਉਚਾਰਨ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਾਂ ਰੋਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਵਿਅੰਜਨ ਦੀ ਵੰਡ ਉਚਾਰਨ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਇਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵਿਅੰਜਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਟੋਟਲ 5 ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੰਠੀ, ਤਾਲਵੀ, ਉਲਟੀ ਜੀਵੀ, ਦੰਤੀ, ਦੋ ਹੋਂਠੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਊੜਾ ਆੜਾ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਊੜਾ ਆੜਾ ਈੜੀ ਸੱਸਾ ਹਾਂ ਗੱਗਾ ਘੱਗਾ ਅਈਆਂ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਚੱਚਾ ਛੱਛਾ, ਜੱਜਾ ਝੱਜਾ, ਅਨਈਆਂ। ਟੈਂਕਾ ਠੱਠਾ, ਡੱਡਾ ਢੱਡਾ, ਨਾਣਾ। ਤੱਤਾ ਥੱਥਾ, ਦੱਦਾ ਧੱਦਾ, ਨੰਨਾ। ਪੱਪਾ ਫੱਫਾ, ਬੱਬਾ ਭੱਬਾ ਮੰਮਾ। ਦੈਨ ਯਈਆ ਰਾਰਾ ਲੱਲਾ ਵਾਵਾ ਹੜਾੜਾ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੱਸੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ, ਖੱਖੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ, ਜੱਜੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ, ਗੱਗੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ, ਫੱਫੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ, ਲੱਲੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਊੜਾ ਆੜਾ ਹੈ। ਕੰਠੀ ਵਿਅੰਜਨ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਆਪਣਾ ਜੋ ਗਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਟੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰੇ ਗਲੇ ਦੇ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਠੀ। ਕੱਕਾ ਖੱਖਾ ਗੱਗਾ ਘੱਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਟੰਗ ਹੈ ਉਹ ਟੱਚ ਹੋਏਗੀ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਠੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੱਚਾ ਛੱਛਾ ਜੱਜਾ ਝੱਜਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਟੰਗ ਹੈ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਟੀਥ ਤੇ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਸਕਿਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਟੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਲੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਲਵੀ ਵਿਅੰਜਨ।
टैंका ठट्ठा डड्डा ढड्डा, इन्हों बोलते हुए जो टंग है वो उल्टी होके पिछे टच होंगी है, सो इन्हों कहा जाता है उल्टी जीवी। तत्ता थत्था दद्दा धद्दा, इन्हों बोलते हुए दंदां नाल टच होंगी है, इस करके इन्हूं कहंदे ने दंती। पप्पा फप्फा बब्बा भब्बा, इन्हों बोलते हुए दोनों लिप्स टच होंगे ने, सो इन्हों कहा जाता है दो होंठी, दो होंठी। पेपर दे विच बहुत बारी क्वेश्चन आ जाता है, थोनों एवें ही रैंडमली कोई एक व्यंजन दे देंगे ने, लैट उन्होंने पूछ लिया कि तत्ता दसो ये केड़ा हुंदा है, कंठी तालवी उल्टी जीवी दंती दो होंठी। तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है इनू क्वेश्चन करना, बस बोल के देख लो, तो ईजिली तुसी उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर लोगे। उस तो बाद दूसरा लिखो व्यंजना दी वंड, व्यंजन दी वंड रोक दे आधार ते। रोक दे आधार ते दो तरह के होंगे ने, डकमे अडकमे। जो डकमे ने ये टोटल 15 ने, अडकमे ने जो वो टोटल 5 ने, 5। हुण जो डकमे ने ये किहड़े ने, बेसिकली जो देखो कक्का खक्खा गग्गा, फिर इत्थे आपां नूं एक रोक ब्रेक लेना पैंदा है, दैन घग्गा, चच्चा छच्छा जज्जा झज्जा, पहले तीन नूं बोल के फिर एक स्टॉप लेना पैंदा है आपां नूं, इस करके जिहड़े इह वाले विचकार वालियां लाइन्स दे जिहड़े फस्ट 3 वर्ण अखर हुंदे ने, उन्हां नूं कहा जाता है डकमे, ते इन्हां नूं कहा जाता है अडकमे, इन्हां नूं कहा जाता है अडकमे। दैन उस तो बाद अगला जो अपने कोल टाइप सी व्यंजन दी वंड उच्चारण लहजे दे आधार ते, लहजे दे आधार ते, इस बेसिस ते व्यंजन ने जो हो अपने कोले फरदर दो तरीके नाल वंडे जाते हैं, दो तरह नाल वंडे जाते हैं, दो तरह नाल वंडे जाते हैं। वो किहड़े ने, लिखण लई समय दे आधार ते, फस्ट है लिखण लई समय दे आधार ते, कि मतलब जिन्होंने लिखण दे लई समा ज़्यादा लगता है या घट लगता है, उस बेसिस ते वंडे जाते हैं। ठीक है, तो ये दो प्रकार के होंगे ने, अगे 2 टाइप्स के होंगे ने। ये फस्ट वन इज संघोष, संघोष लिखण लई ज़्यादा टाइम लगता है, जो संघोष होंगे ने इन्हों लिखण लई वध समा लगता है। देन सेकंड अघोष, लिखण लई घट समा लगता है, इन्हों लिखण लई घट समा लगता है। हुण ये किहड़े हुंदे ने, संघोष अघोष किहड़े हुंदे ने, जिहड़े ये फस्ट 2 लाइन्स हुंदियां ने, सॉरी अप टू दिस, जो ये वालियां फस्ट 2 लाइन्स हुंदियां ने,
यानी कि कक्का खੱਖਾ ਚੱਚਾ ਚੱਚਾ ਟੈਂਕਾ ਠੱਠਾ ਤੱਤਾ ਥੱਥਾ ਪੱਪਾ ਫੱਫਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ ज़्यादा टाइम लगता है एज़ कंपैरेटिव टू ਇਹ वाले दो। ठीक है, इस करके ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ है संघोष। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ है संघोष ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ है अघोष। ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ दो लाइन्स ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ है अघोष। तो जे आप संघोष की गिनती देखिए टोटल 10 ने, यह टोटल 10 ने। ओके, तो जे आपको कोई पूछे जो संघोष ने वो टोटल 10 होंदे ने ते यह भी अपने कोल टोटल 10 होंदे ने। इत्थे तक नोट कर लो। देन उस तो बाद जो अपने को अगला है दूसरी टाइप है वो है ये आप उच्चारण लहजे के स्थान वाले च ही कर रहे हैं। ठीक है, इस तो बाद आप ऊपर चल रहे हैं बोलन की गति, बोलन की गति दे आधार पे। नो वट इज गति स्पीड कि कितनी स्पीड के नाल बोले जाते हैं। ओके, तो यह अपने को अगे दो होंगे ने। फस्ट वन इज अल्प प्राण। अल्प प्राण, अल्प प्राण वो होंगे ने जिन्होंने बोलने लई घट समा लगता है, जिन्होंने बोलने लई घट समा लगता है, जिन्होंने बोलने लई घट समा लगता है। हुण इह किहड़े हुंदे ने जिन्हां दे उपर मैं 0 यह या फिर सर्कल बनाऊंगी वो हुंदे ने अल्प प्राण। किहड़े ने यह जिन्हां दे उपर सर्कल बनाया है वह अल्प प्राण हुंदे ने, अल्प प्राण हुंदे ने। ठीक है, तो यह भी टोटल हुंदे ने 10, टोटल हुंदे ने 10। दूसरे हुंदे ने महाप्राण, जिन्हां नूं बोलण लई वध समा लगता है ते जिन्हां दे उपर मैं ट्रायंगल बना रही हाँ वो हुंदे ने अल्प प्राण। यह वाले हुंदे ने अल्प प्राण, अल्प प्राण। इत्थे तक देखो, ये है अपने कोल टोटल सारी दी सारी व्यंजना दी वंड। उस तो बाद जिहड़े बाकी बचे ने, जिहड़े बाकी बचे ने यह आपां नूं सिलेबस दे विच नहीं पूछे जाते कि यह किहड़े ने, बट आपां इन्हां नूं इत्थे देख लैंदे हां ताकि तुहानूं एग्जाम दे विच जे बाय चांस क्वेश्चन आ गया तो तुसीं उहनूं अटैम्प्ट कर सको। बट पेपर दे विच तुहानूं बहुत वारी संघोष, अघोष, महाप्राण, अल्प प्राण, डकमे, अडकमे, दो होंठी वाले सारे पार्ट तो क्वेश्चन बनता है तो बहुत ज़्यादा बनता है। तो जे तुसी कोई एग्जाम देन जाओगे तो तुहानूं 2 क्वेश्चन इस टॉपिक दे विचों जरूर मिलणगे जे उस पेपर दे विच जो ग्रामर है वो 12 तो 25 नंबर तक आ रही है। ठीक है, तो अपने को जो ये लास्ट वाली लाइन हुंदी है इन्हां नूं बोलण दे विच स्ट्रगल करना पैंदा, इस करके इन्हां नूं कहंदे आपां संघर्षी व्यंजन। की कहंदे आ? संघर्षी।
कहा जाता है संघर्षी व्यंजन। यह बट अपनी इस टाइप के विच नहीं है, ठीक है। उस तो बाद सस्से नूं भी कहा जाता है संघर्षी। संघर्षी जो ऊड़ा आड़ा ईडी ने लास्ट क्लास के विच आपां पढ़िया सी, इन्हां नूं कहा जाता है स्वर अखर। की कहा जाता है? स्वर अखर। जो नईया अणईया नाड़ा नन्ना मम्मा यह ने, इन्हां नूं कहा जाता है नासकी। नासकी जिन्हां नूं बोलण लगे नक चों आवाज़ आती है। उस तो बाद जिहड़े बाकी ये अपने को हाहा है, पहला हाहे नूं देख लैंदे आ, इहनूं कहंदे ने सुरयंत्री। हाहे नूं कहा जाता है सुरयंत्री, ते यह अपना अखंडी धुनी सुरयंत्री कहा जाता है हाहे नूं। सुरयंत्री ते अपना अखंडी धुनी का पार्ट है, तो आप इनू पढ़ांगे। जो यैया ते वावा ने, जो यैया वावा वाली लाइन है, इन्हों तुसी देखो यैया दो बारी सेम आवाज़ आती है, रा रा लल्ला वावा राड़ा, इच की कर रही है आवाज़ वाइब्रेट हो रही है, इस करके इन्हों कंबन या फड़कमें व्यंजन भी कहा जाता है। जो यह वाली लाइन है इन्हों कहा जाता है कंबन या फड़कमें व्यंजन। फड़कमें व्यंजन यह सी अपना सारा दा सारा स्वर ते व्यंजन वाला पाठ। इत्थे तक किसी का भी कोई डाउट है तो इस तो बाद अपना जो अगला पार्ट है वो है अखंडी धुनी। अपना जो अगला पार्ट है वो है अखंडी धुनी। ये नाल अपनी खंडी धुनी कंप्लीट होंदी है, जिस दे विच आपां ने पढ़िया सी कि दो प्रकार के हुंदे ने स्वर ते व्यंजन, ते अपने दोनों दे दोनों ही कंप्लीट हो चुके ने। सो द नेक्स्ट इज अखंडी धुनी। यह वाला जो पार्ट है, जो ये ब्लैक बोर्ड पर तुहानूं इस वक्त दिख रहा है, इत्थों अनलिमिटेड क्वेश्चंस मिलते हैं, इनू चंगी तरह अपनी नोटबुक्स ते नोट कर लियो। नेक्स्ट इज अखंडी धुनी। जे तुहानूं याद होगा आपां लास्ट क्लास दे विच पढ़िया सी कि खंडी धुनी ओह धुनी हुंदी है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती है, जो सुतंत्र रूप विच विचरण की समर्था रखती है। बट खंडी धुनी जिहड़ी हुंदी है हमेशा ही अखंडी धुनी हमेशा ही खंडी की मदद के नाल वरतों विच आएगी। यह ओह धुनी है जो खंडी की मदद नाल वरतों विच आउंदी है, वरतों विच आउंदी है। ते यह 4 प्रकार की हुंदी है, 4 टाइप्स। सब तो पहला लिखो सुर या सुरयंत्री। सुर या सुर भी कहते हैं या फिर सुरयंत्री। ते यह हाहा हुंदा है, यह हाहा है। हाहे नूं सुर या सुरयंत्री कहा जाता है। नेक्स्ट है नासिकता। दूसरी है नासिकता। नासिकता वो होंदी है जिन्हों बोलते टाइम हमेशा ही नक चो आवाज़ आती है, तो यदा चिन्ह होंगे टिप्पी। सो इत्थे आपां लिखांगे यदा चिन्ह मीनस सिंबल
टिप्पी हुंदा है। देखो जिहड़ी भी चीज़ के उपर जिहड़े भी अखर के उपर टिप्पी लगी होवे हमेशा नक चों आवाज़ दिंदी है। जिवें कि लैट आपां ने इत्थे लिखिआ सस्सा तत्ता सत, टिप्पी लगा दो सस्से के उपर तो बन जूगा संत। जिवें कि आपां ने लिखिआ सुर यंतरी, यंतरी बोलिया तो ये दे उपर टिप्पी लगी हुई है। जे तुसीं इहनूं सिर्फ इस तरह लिखो बिना टिप्पी तो यह बन जूगा सुर यंतरी। दैन उस तो बाद थर्ड है बल। बल इनू दबा भी कहते हैं, बल या दबा। इट मीनस कि किसी पर्टिकुलर अखर किसी पर्टिकुलर अल्फाबैट के उपर दबा प्रैशराइज्ड पाना। तो यदा सिंबल की होगा अद्धक, यदा सिंबल की हुंदा है अद्धक हुंदा है। पंजाबी दे विच जिहड़ी भी चीज़ के उपर अद्धक लिखिया लाया जाता है उत्थे आपां नूं थोड़ा जा जोर लगा के बोलना पैंदा है। जिवें कि आपां लैट सपोज अद्धक की स्पैलिंग लै लो, अद्धक जे तुसीं की बन गया अदक। टिप्पी लगा अपने कोले तुसीं अद्धक लगाता ताकि बन गया अद्धक। जिवें कि सेम सस्सा तत्ता सत, सत अद्धक लगाया तो वह बन गया सत। दैन उस तो बाद फोर्थ एंड लास्ट टाइप है अखंडी धुनी दी विश्राम चिन्ह। विश्राम चिन्ह देखो अपने को की हुंदा है पंजाबी दे विच टोटल ना 13 विश्राम चिन्ह हुंदे ने। 13 विश्राम चिन्ह लगाने जदों आपां नूं तां ये पता लगता है कि किसी भी सेंटेंस नूं किवें बोलना है। जिहड़ा विश्राम वाला चिन्ह वाला पार्ट है इनू तान भी कहते हैं, इनू तान भी कहते हैं। देखो आपां ने इत्थे एक एग्जाम्पल लई आपां कहा कि ओहो पढ़दा है कौमा, ओहो पढ़दा है डंडी, ओहो पढ़दा है क्वेश्चन मार्क। जदों तो आपां ने पहला कौमे वाला पार्ट पढ़िया ओहो पढ़दा है, इट मीनस कि वह हजे कंप्लीट नहीं है, उस तो अगे भी कुछ हैगा तो आप एक्सपैक्ट करते हैं कि अगे कुछ दिता होगा। वो पढ़ता है पर पास नहीं होंदा लेट, तो वह पढ़ता है डंडी लगी हुई है कंप्लीट है, इनू उस तरीके नाल ही पढ़िया जाऊगा। पिछे क्वेश्चन मार्क लगे हुए तो आप उसनू क्वेश्चन पूछण दी फॉर्म दे विच ही बोलांगे वह पढ़ता है। सो एक विश्राम चिन्ह लगन दे नाल किसी भी सेंटेंस नू किसी भी वाक नू पढ़न दे लहजे ने जिहड़े वह बदल जाते हैं। सो यह सी अपना सारा दा सारा अखंडी धुनी वाला पार्ट। आपां ने इत्थे धुनी वाले पोर्शन च हुण तक की पढ़िया है, आपां उहदा सारे दा एक फ्लो चार्ट बना लैंदे हां ताकि तुहानूं लर्न करन दे विच ईजी रहे। आपां ने हुण तक पढ़िया धुनी, दो पार्ट ने धुनी दे खंडी अखंडी। खंडी दे फर्दर दो पार्ट स्वर व्यंजन, स्वर दे फर्दर दो पार्ट हशव दीगर। व्यंजन नूं तीन तरह के आधार पर वंडिया गया है, 3 तरह के आधार के उपर वंडिया गया है। फर्स्ट वन उच्चारण स्थान के आधार पर, ते यह फर्दर 5 टाइप्स दे ने कंठी तालवी दो होंठी दंती उल्टी जीवी। दैन उस तो बाद रोक दे आधार ते, रोक दे आधार ते दो प्रकार दे ने डकवें अडकवें। दैन उच्चारण लहजे दे आधार ते, लहजे दे आधार ते 4 प्रकार दे पढ़े ने संघोष अघोष महाप्राण अल्प प्राण। अल्प
प्राण। उस तो बाद अखंडी धुनी पढ़ी आपां ने, यह किन्ने प्रकार की हुंदी है? 4 टाइप्स की। हुनी पढ़ी है किहड़ियां किहड़ियां ने? 4 टाइप्स, नासिकता, बल, तान, सुरयंत्री। यह पूरा पार्ट है जिहड़ा अपना कंप्लीट हो चुकिया है। अपना धुनी बोध का एक पार्ट खत्म हो चुकिया है। तो जिन्हों ने मेरिया पहले वाली वीडियोज़ नहीं देखियां उसनू देखो, क्योंकि यह जिहड़ा अज वाला टॉपिक सी सारा वो पहला वाले टॉपिक के नाल रिलेट करता है। ठीक है, तो इस चीज़ को चंगी तरह पढ़ लियो, याद रखियो, बिकॉज एग्जाम दे विच यह वाला जो पूरा पार्ट है, जे एग्जाम दे विच 25 मार्क्स दी पंजाबी ग्रामर आंदी है, जिवें कि पिछली बारी अपने कोले काफ़ी इस तरह के एग्जाम्स होए सी 2019 जिथे 25 मार्क्स की पंजाबी ग्रामर पूछी गई सी। तो इस टॉपिक दे विचों 3 तो 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। थैंक यू सो मच। बाकी आपां अगली क्लास दे विच पढ़ांगे।